हम बात करें सी पैक की। अभी सी पैक क्या है? सी पैक actually started from the narrative of Silk Road, from the narrative of Silk Road. In 1956, Pakistan and China developed and did agreement to develop Silk Road, and both countries completed Silk Road in 1978, what you call Karakoram Highway. It is called Karakoram Highway. In 2013, Pakistan did agreement with China to develop Gwadar Port. In 2015, Pakistan started developing Gwadar and CPEC in three phases. Phase number one, from 2015 to 20, it is called connectivity phase. In this phase, Pakistan and China connect Gwadar with Kashgar via two routes. Number one, western route, and number two, eastern route. Western route coming from Kashgar to Havelia, to Dera Ismail Khan, to Khuzdar and Gwadar. Eastern route coming from Havelia to Faisalabad, to Multan, to Sakkar and Gwadar. So western, यार रिपीट इतना क्या मुश्किल है? अक्सा रूट बताया, ईस्टर्न रूट को रिपीट कर देता हूँ। हवेलियां टू फैसलाबाद टू मुल्तान टू सखर टू गवादर। वेस्टर्न रूट में फ्रॉम काशगर टू हवेलियां टू डेरा इस्माइल खान खुजदार टू गवादर। ये दो रूट बनाए गए हैं, कनेक्टिविटी है। सो बाय दीज रूट्स वी हैव कनेक्टेड चाइना सिटी काशगर विद गवादर। सो जो कनेक्टिंग रूट है बिटवीन चाइना टू गवादर। So phase number two, officially it was supposed to start from 2020 to 25, but now we have started it from 2024. So first phase जो है वो थोड़ा, second phase late शुरू हुआ है। Second phase is late that we started, and it was supposed to start from 2020, but now we have started it from 2024. According to this phase, the industrial zone will be developed. Industrial zone will be developed. At least 9 industrial zones will be developed on CPAC routes. And phase number 3 was supposed to start from 25 and will end to 25 to 2030.
फेज जो 3 है वो 25 टू 2030 तक चलेगा, ये अभी प्लान है। जबकि फेज 2 लेट हो गया है, वो 25 में खत्म होना था, वो शुरू ही अभी 24 में हुआ है। क्लियर? सो 25 सो 2030 में क्या है, फिनिशिंग टच, लास्ट फेज को हम कहते हैं फिनिशिंग टच। सो according to this phase, railway line will be developed, 6G fiber optics will be developed, and Gwadar port will be developed as international level. Seventh berth will be developed on commercial basis, and many berths for the military bases, security bases and military bases. So it is called last phase. Now, CPAC is considered the flagship project of BRI. अगले पॉइंट पे आना। CPAC is considered flagship project of BRI. According to CPAC time period, it is supposed to complete in 15 years. It is supposed to complete in 15 years, while BRI completion date announced by Chinese government is 2049. BRI complete कब होना है? 2049 में. So according to this timeline, CPAC will have 15 years to develop, while all legs of BRI, all remaining 5 legs of BRI will have 19 years to develop. 19 years to be developed. CPAC is the shortest route and smartest route of BRI, but having 15 years for its development, while other 5 routes that are longer than CPAC have just 19 years to develop. It means CPAC will provide foundation to all remaining land routes. All remaining land routes. So BRI initially is a plan of 6 road connecting Beijing with the different regions. ठीक है? So BRI की जो basic understanding है वो मैं आपको बताता हूँ. BRI गौर से सुन लें. BRI actually connecting different region with Beijing, and for this purpose, Beijing has planned to develop 6 routes. The basic route will be New Eurasian Bridge Line or corridor, New Eurasian Bridge Corridor. जो बेसिक रोड है ना वो न्यू यूरोशियन ब्रिज कॉरिडोर है, उसे बेसिक कॉरिडोर कहते हैं. That is connecting Beijing with Central Asia and Eurasia.
ये जो है ना बिल्ट ब्रिज, एक मेन रोड है जो बीजिंग से आती है, वो सेंट्रल एशिया से गुजरती है और यूरो एशिया तक जाती है। इसको कहते हैं न्यू यूरो एशिया ब्रिज कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर के साथ डिफरेंट कॉरिडोर्स को कनेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, a road going from Beijing to Moscow, and then Scandinavian Europe. Number two, road, एक और रोड है that is crossing Mongolia, and Russia and Eurasia. अब एक और रूट है जो सी पैक है, और एक और रूट है जो कनेक्टिंग इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, इसे चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर भी कहा जाता है, चाइना इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर। और एक दूसरा, एक और कॉरिडोर है जो म्यांमार से जो सॉरी, जो वियतनाम को टच करता है, वियतनाम को, मलेशिया को और सिंगापुर तक आता है। वियतनाम, मलेशिया एंड सिंगापुर। तो ये डिफरेंट किस्म के कॉरिडोर्स हैं जो 6 रूट पर मुश्तमिल हैं, और ये तमाम 6 रूट जो हैं ये सेंट्रल ब्रिज लाइन के साथ कनेक्टेड हैं, जो मैंने आपको बताया न्यू यूरेशियन ब्रिज कॉरिडोर के साथ कनेक्टेड है। और ये ब्रिज जो है वो बीजिंग के साथ इन तमाम रूट्स को कनेक्ट करती है। अच्छा, इसका मैं आपको अगर मैप भेज दूं, या आप भी कर सकते हैं, गूगल पे अगर आप लिखें BRI रूट्स इमेजेस, तो उसमें आ जाएगा। आप इसको एक शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। मेरे पास डाटा बहुत पड़ा है, मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा। आप भी अगर नेट से कोई करके डाल सकता है। मैं कोशिश करता हूँ, ये आपको भेज देता हूँ। BRI आप लिखेंगे ना, BRI इमेजेस, गूगल के ऊपर इमेजेस को क्लिक करेंगे तो बहुत सारी पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी। तो वहां से आप ये रूट्स देख सकते हैं, कौन सा रूट कहाँ जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल। तो कौन शेयर करने लगा है?
जी, अक्सा ने एक पिक्चर भेजी है। इसके साथ नेयर जाकिर ने भी एक पिक्चर बनाई है। तो नैयर वाली पिक्चर तो क्लियर नहीं है, ये और चीज इसको शो कर रही है। अक्सा की है, लेकिन अक्सा वाली भी, इसमें भी एक मसला है, ये पिक्चर भी ठीक नहीं है। आप ये देख सकते हैं, फाइनली अक्सा वाली आपको हेल्प आउट जरूर करती है। आपको एक रोड नजर आ रहा है, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। ये बीजिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। बीजिंग कहाँ है? जहां आपको नजर आ रहा है चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर। देखिए, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर का जो रोड शुरू हो रहा है जहां से, चाइना से, वो वहां बीजिंग है। बीजिंग उस जगह पे है। तो न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज भी उसी जगह को जाके कनेक्ट करती है। और बाकी सारे रूट न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस तमाम रूट्स में से आप, मैं पिक्चर अक्सा वाली पिक्चर से आप देखें, अक्सा ने जो भेजी है, आप मुझे एक बात बताएं, आपको में सबसे छोटा रूट कौन सा नजर आ रहा है? स्मार्ट। आपको इन सब में से छोटा पाक चाइना कॉरिडोर नजर आ रहा है। ऐसा करते हैं, एक और पिक्चर देखते हैं जो मोहम्मद अली ने भेजी है, मोहम्मद अली कुरैशी ने भेजी है। अगर आप इसको गौर करें, तो ये आपको सी पैक ज्यादा क्लियर नजर, बी आर ई ज्यादा इसमें सही नजर आ रहा है। लेकिन इनके ऊपर नाम नहीं लिखे हुए रोड्स के ऊपर। आप देखें, ये कुराई, मोहम्मद अली कुराई की पिक्चर में देखें, काशगार से गवादर तक जो रोड है, इसको आप बी आर आई कहते हैं। और बेसिकली ये रूट ऊपर वाले रूट से कनेक्ट है, जो काशगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है। और ये कौन सा रूट है जो काशगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है आपको ये वही है, न्यू यूरेशियन जो है, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज कॉरिडोर जिसे वो कह रहे हैं। ठीक है, डन हो गया। जो उन्होंने रेड कलर किया है, आप जरा गौर कीजिए, जो रेड कलर में है इन ब्रिजेस में, वो इन्वेस्टमेंट है। जो रेड कलर है वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है, जो जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। क्लियर? आगे चले। तो बी आर आई आपने देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में आ जाए। ये था बी आर आई, और सी पैक इज अ पार्ट ऑफ बी आर आई। और मैंने आपको बताया, व्हाई डू वी से सी पैक इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। क्योंकि ये जितना भी सी पैक आपको नजर आ रहा है, ये जब डिवेल्प होगा, तो इससे पूरा बी आर आई डिवेल्प होगा। बी आर आई इसकी वो कैसे, इस पे आते हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखे।
ये कैसे होगा? देखिए, नंबर 1 पॉइंट पे आ जाए। व्हाई डू वी से सी पैक इज फ्लैगशिप प्रोजेक्ट? इस पे पहली तो बात यह है कि ये सबसे स्मार्टेस्ट है और इसको बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज्यादा टाइम फिक्स किया गया है। नंबर 2, आर्गुमेंट नंबर 2 पे आ जाए। CPEC will provide the shortest access to China for Persian Gulf. Persian Gulf is an energy of cell, right? So China need maximum energy. China needs maximum energy to run its industry. And China is the highest importer of energy. Number 1. Number 2, CPEC will provide smartest access to China to reach in European markets. To reach in European markets via Red Sea into Mediterranean region. So Red Sea will provide African countries market and Mediterranean market. So China will have maximum markets in its axis, in its short axis, smart axis. So that will boost Chinese economy. It will multiply Chinese economy many times. Number 3, आपको ये क्या हो गया? स्मार्ट एंड इजी एक्सेस है, स्मार्ट एंड इजी एक्सेस है। Number 3, China China is using CPEC, and China will use CPEC as an alternate route of South China Sea. Alternate route of South China Sea. South China Sea route is being used by China traditionally and historically. That is fulfilling 70% need of Chinese marine trade. So 70% trade आज भी चाइना की साउथ चाइना सी रूट पर डिपेंडेड है। लिख लें ये बातें। 70% trade is almost dependent on South China Sea route. It is traditional and historical route of China. But CPEC will provide an effective alternate to this route. CPEC is more time effective comparatively and cost effective than South China Sea route. Time effective भी है, cost effective भी है। For example, South China Sea route consuming almost 2 months. Consuming almost 2 months for Chinese trade to reach Northern Sea. To reach in Northern Sea. Northern Sea कहाँ है? आपको याद है ना? वो यूरोप के अंदर, जो स्कैंडिनेवियन यूरोप को सेंट्रल यूरोप से सेपरेट करता है, उसे कहते हैं नॉर्दर्न सी। इंग्लिश चैनल, आप इंग्लिश चैनल के जरिए नॉर्दर्न सी में जाते हैं। सो चाइना को 2 मंथ लगते हैं ऑलमोस्ट नॉर्दर्न सी में रीच करने के लिए, लेकिन साउथ चाइना सी रूट जो है वो इसको यूज करता है। अगर वो सी पैक को इस्तेमाल करेगा, सो चाइना विल हैव 1.5 वीक, 1.5 वीक टू रीच इन नॉर्दर्न सी। चाइना विल हैव 1.5 वीक एट टू रीच इन नॉर्दर्न सी। तो देखें, 2 महीने में एक चीज पहुंचती है
और 1.5 हफ्ते में एक चीज पहुंचती है, तो इट इज वेरी टाइम इफेक्टिव. एंड टाइम इफेक्टिवनेस मीन द कॉस्ट इफेक्टिव आंसर. So China will maximize its surplus. If China will do that and China will apply this route, it means China will revolutionize its industry. China will penetrate into the European industry. और ये बात लिखने जब आपको लिखवाना हो, China will win. China will win transatlantic trade. China will win favor over transatlantic trade with Europe. यूरोप और अमेरिका की ट्रेड कैसी है, मुझे ये बताएं. यूरोप और कनाडा की ट्रेड कैसी है? ट्रांस अटलांटिक है. उनको अटलांटिक पास करना पड़ता है, अटलांटिक क्रॉस करना पड़ता है यूरोप में आने के लिए. एम आई राइट? बच्चों बताओ, अमेरिका से यूरोप आने में कौन सा सी आपको, कौन सा ओशन क्रॉस करना है? अटलांटिक ओशन. लेकिन अगर चाइना सी पैक को इस्तेमाल करता है तो वो अमेरिका की निस्बत यूरोप में जल्दी पहुंच जाएगा. चाइना विल रीच इन यूरोप फास्ट देन अमेरिका. So China will China will incorporate and penetrate into the European market, especially Mediterranean market. So Mediterranean market में क्या आता है? Southern Europe, इटली भी उसमें आता है, पुर्तगाल भी उसमें आता है, उसमें स्पेन भी आता है, उसमें ग्रीक भी आते हैं, उसमें जॉर्जिया वगैरह, और वो उसमें काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज आप देखें. तो वो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड कंपटीशन जीत जाएगा. एंड चाइना हैज ऑलरेडी सुप्रीमेसी ऑन द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड ओवर यूएसए, ओवर अमेरिका. नंबर 1 ट्रेड कौन कर रहा है? नंबर 1 ट्रेड वॉल्यूम में नंबर 1 कौन है? अमेरिका. नंबर 2 कौन है? चाइना. अमेरिकन्स आर हैविंग द इकोनॉमिक वॉल्यूम of $21 billion, and Chinese are having $19 billion trillion dollar. अमेरिका के पास $21 ट्रिलियन का वॉल्यूम है ट्रेड का दुनिया में. चाइना के पास 19 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है. तो 21 एंड 19 ट्रिलियन डॉलर, सिर्फ $2 ट्रिलियन का गैप है. और अगर सी पैक ऑपरेट हो जाता है और यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर जाता है चाइना, और ट्रांस अटलांटिक जो है वो विन कर जाता है ट्रेड कंपटीशन, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड कंपटीशन विन कर जाता है, मतलब पेनिट्रेशन बढ़ा देता है चाइना, ऑर्डर भी बढ़ जाएंगे, तो चाइना तो तेजी से आगे निकल जाएगा, नंबर 1 सुपर पावर होगा. यू गॉट द पॉइंट? और ट्रांस पैसिफिक जो है, आपको पता है यूएसए जब पैसिफिक क्रॉस करता है तो उसके सामने कौन से कंट्रीज आते हैं? ऑस्ट्रेलिया आता है नीचे साउथ में, न्यूजीलैंड आता है, इसके बाद उसके सामने फिलिपाइन आता है, उसके सामने मलेशियन, इंडोनेशिया एंड पपुआ न्यू गिनी आता है, उसके सामने ताइवान और जापान आता है, उसके सामने नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया आता है. तो इन तमाम कंट्रीज में इसे कहते हैं ट्रांस पैसिफिक. ट्रांस पैसिफिक में तो चाइना ऑलरेडी डोमिनेंट है, तो ट्रांस अटलांटिक में भी वो डोमिनेंट हो जाएगा. यू गॉट द पॉइंट? तो कौन बनाएगा ताकतवर, कौन बनाएगा सुपर पावर चाइना को? अब चाइना के लिए प्रॉब्लम है, चाइना ने अपने सिक्योरिटी भी करनी है.
नेक्स्ट पे आ जाए, सिक्योरिटी एंगल। BRI समझ आया है? अब सिक्योरिटी एंगल पे आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। अब चाइना ने क्या काम किया सुन लें। इसको महफूज कर बनाने के लिए, इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए चाइना क्या कर रहा है? नंबर वन, चाइना did investment in Gwadar and increasing its investment in Gwadar. Number one. Number two, China is going to do investment in Bay of Bengal. Bay of Bengal. Chattagang port. China is going to develop Chattagang port. अब चट्टागांग जो पोर्ट है उसको चाइना डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। आपने देखा ना ऊपर BRI के जरिए, जो चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर है, चाइना डायरेक्ट बांग्लादेश में आएगा। चाइना इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर, चाइना इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर। और इस वजह से चाइना जो है वो सीरी कॉरिडोर, डोकाराम, गलवान वैली पे प्रेशर बढ़ा रहा है। बताया ना मैंने आपको, क्योंकि इंडिया से गुजर कर थोड़ी सी जगह है इंडिया की, जिसे आप कहते हैं चिकन नेक, इंडिया की चिकन नेक को क्रॉस करके चाइना डायरेक्टली चटागांग पर पहुंचना चाहता है, जो कि बांग्लादेश की पोर्ट है। दूसरा, चाइना हैज रिक्वेस्टेड टू बांग्लादेश टू टेक सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड। Saint Martin Island are situated in the right north of Strait of Malacca. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बिल्कुल नॉर्थ में है, एंड क्लोज टू इंडियन आइलैंड निकोबार, एंड अंडमान। दो इंडिया के आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के अंदर, जिसे कहते हैं निकोबार एंड अंडमान। सो इंडियन आइलैंड के करीब बे ऑफ बंगाल में, स्टेट ऑफ मलाक्का के नॉर्थ में सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश का, जो चाइना कोशिश कर रहा है कि वो हासिल कर ले। एंड अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि ये उसको मिल जाए। अमेरिका चाहता है कि ये उसको मिल जाए, बांग्लादेश उसको दे दे। चाइना चाहता है कि ये उसको मिल जाए। तो इस वजह से, इस कंपटीशन की वजह से वहां रजीम चेंज हुआ है। बांग्लादेश में रजीम चेंज इसी वजह से हुआ है। यही कशमकश थी, यही कंपटीशन था। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। अब दूसरा, चटागांग में कौन बैठा हुआ है? चाइना। चटागांग के नीचे बे ऑफ बंगाल में पानी के अंदर सेंट मार्टिन में भी चाइना बैठ जाएगा जाके। और बेसिकली चाइना ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को सिक्योर करे। वो जो 7th शिप खड़ा हुआ है अमेरिका का सिंगापुर के ऊपर, वो उसके असर को न्यूट्रलाइज करे, उसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करे विद द हैवी मिलिटराइजेशन ऑन सेंट मार्टिन एंड चटागांग, ताकि अगर अमेरिका सिंगापुर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर चाइनीज शिप्स को कंटेन करेगा, रोकेगा इन वर्स्ट पोजीशन, तो चाइना उसको रिप्लाई कर सके, चाइना उसको काउंटर कर सके। तो सेंट मार्टिन आइलैंड जरूरत है। सेंट मार्टिन आइलैंड आर क्लोजेस्ट एंड इन द स्ट्रेट नॉर्थ ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो समझ आ गई है खान साहब? और इंडियन इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करेगा। चाइना विल काउंटर द इंडियन इन्फ्लुएंस इन बे ऑफ बंगाल। अब इसके लिए एक और काम भी किया है। चाइना हैज टेकन हिम्बन टोटा फ्रॉम श्रीलंका।
Hambantota port from Sri Lanka. So वहां भी चाइना अपनी ट्रेड शुरू कर रहा है, उस पोर्ट को डेवलप कर रहा है. So this is another effort of China to secure route, marine route. तीसरा, चाइना गवादर के अंदर मिलिट्री डेवलप, गवादर के अंदर भी क्या है, सिक्योरिटी है. एक और है जिबूती, रेड सी के माउथ के ऊपर है, यमन के सामने, क्लोज टू यमन, जिबूती पोर्ट. जिबूती पोर्ट चाइना का मिलिट्री पोर्ट है. जिबूती पोर्ट समझ आ गया आपको? जिबूती, जिबूती कहाँ है? जिबूती बिल्कुल यमन के अपोजिट, रेड सी की ओपनिंग माउथ पे है, रेड सी के ओपनिंग माउथ पे. सो चाइना इन 4 पोर्ट्स को रेगुलेट करेगा. आप कहेंगे चाइना इज गोइंग टू डेवलप दीज 4 पोर्ट्स टू चैनलाइज इट्स मैरीन ट्रेड एंड टू कनेक्ट इट with the land trade, BRI. So for supporting BRI heavily, China will operate these 4 ports and channelize them and all the trade traffic through these ports. So जो लैंड ब्रिज है, आप समझे, जो BRI है, BRI एक लैंड रूट्स है. उन लैंड रूट्स तो कहां तक पहुंचते हैं? सी रूट्स तक पहुंचते हैं. और सी रूट में 4 पोर्ट्स चाइना ने डेवलप किया है, करने शुरू कर दिए हैं, जिनसे वो अपनी ट्रेड को रेगुलेट करेगा. जिसमें मैंने बताया चटागांग पोर्ट है, हेम्बनटोटा पोर्ट है, गवादर पोर्ट है और जिबूती पोर्ट है. ये 4. अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे आ जाते हैं. 5 मिनट मुझे चाहिए आपके, 5 मिनट, ठीक है? तो ये भी खत्म हो जाएगा ताकि आपका सिलसिला. कंटेनमेंट ऑफ चाइना. अब चाइना अगर ये परफॉर्म कर जाता है इस तरह, तो चाइना तो सुपर पावर बन जाएगा. तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अमेरिकन ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है. अमेरिका अब क्या कर रहा है? नंबर 1 पे आ जाए. साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. चाइना इज America is creating conflict and supporting anti-China states in South China Sea. पहला साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. वहां कॉन्फ्लिक्ट क्या है लिखे आप. साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? व्हाट इज साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट? ये कौन लिख रहा था? उसको कहे कि जरा तेज हो जाए. It is a conflict on the islands. Number 1 on the Paracel Island. Number 2 on the Shoal Island. Paracel Island. फिर है Shoal, SHOAL, Shoal Island. और नंबर 3 है सपाट्रे, सपाटले आइलैंड, स्प्रेटले आइलैंड. तो ये 3 आइलैंड हैं बड़े बड़े. इन आइलैंड्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलिपाइन, ब्रुनेई एंड मलेशिया. फिर सुन लें. पारासल आइलैंड है, स्प्रेटले आइलैंड है एंड शोल आइलैंड है, SHOAL, शोल. इन तीनों आइलैंड्स के ऊपर चाइना, वियतनाम, ताइवान, फिलिपाइन, ब्रुनेई एंड मलेशिया का कॉन्फ्लिक्ट है. इट इज कॉल्ड साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. Additionally, China is developing artificial island in South China Sea. This is another conflict. So, China is increasing exclusive economic zones by developing artificial island in South China Sea. So, American are supporting Philippines, Taiwan, especially Philippines and Taiwan, to
अगेंस्ट चाइना। सो इसे कहते हैं साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। एंड अमेरिकन हैज placed seventh warship in Singapore to contain Chinese ships on Strait of Malacca. It is called Indo-Pacific 0.1. तो स्ट्रेट ऑफ मलाका पे सेवंथ शिप जो खड़ा हुआ है इसे कहते हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक 0.1। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर जो एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, उनका शिप खड़ा हुआ है, उसे कहते हैं इंडो पैसिफिक 0.2 कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है इसके ऊपर क्यों खड़ा हुआ है जी? बिकॉज American did not want China enter into Persian Gulf to take energy easily. वो कहते हैं कि आसानी से एनर्जी ना ले सके चाइना पर्शियन गल्फ से, और जब एनर्जी नहीं लेगा तो फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो ट्रेड नहीं कर सकेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी चाइना की। सो क्लियर माय डियर? तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना ये हो गया। अच्छा, दूसरी कंटेनमेंट क्या है? चाइना अमेरिकन आर मेकिंग अलाइज। अब अमेरिकन ने अलाइज डेवलप किए हैं। नंबर 1, इंडिया is helping America for the containment of China because it is Indian interest as well. So, number 2, Japan helping America for the containment of China. Number 2, number 3, Australia helping America for the containment of China. It is called Quad. इसको आप क्या कहते हैं? Quad. India, Japan, Australia and USA helping America for the containment of China. अब एक और, इसको क्वाड कहते हैं, 4 कंट्रीज हैं ये, क्योंकि इनको अगर ज्योग्राफिकली इनको कनेक्ट किया जाए एक लाइन के जरिए इन तमाम कंट्रीज को मैप के ऊपर, तो क्वाड शेप बनती है। इनको क्वाड इसलिए कहा जाता है। एक और चीज है अकुस, AUKUS, अकुस। अकुस क्या है जनाब? इसको अकुस भी कहते हैं हम, अकुस भी कहते हैं। ये है जी बिल्कुल, अक्सा ने क्वाड की पिक्चर भेजी है बेटा, आप चेक कर लें, बड़ी अक्सा वेरी गुड। तो क्वाड शेप आप देख लें। और दूसरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अकोस। अकोस क्या है बेटा? वो है रिलेशन, वो है कनेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके एंड अमेरिका। अकूस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके एंड अमेरिका। अकूस का मतलब ए, पहले ए यू कोस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके और फिर यूएस। अकूस को आप लिखेंगे ना तो आप देखें ये किस तरह बनता है। AUKUS, अकूस की स्पेलिंग है AUKUS। सो AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, देन यूके एंड देन यूएस। इसे अकूस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस alliance, UK and America going to provide nuclear, इसमें मैंने 3 कंट्रीज बताए हैं ना। हाँ,
गोइंग टू प्रोवाइड न्यूक्लियर, नहीं इंडिया नहीं है बेटा, अकूस में इंडिया नहीं है, इंडिया मैनेज कर रहा है। गोइंग टू प्रोवाइड न्यूक्लियर सबमेरीन और न्यूक्लियर मिसाइल्स फॉर ऑस्ट्रेलियन नेवी। ऑस्ट्रेलियन नेवी को न्यूक्लियर वेपन दिए जा रहे हैं टू कंटेन चाइना इन इंडो पैसिफिक। इसे आकुश कहा जाता है। क्लियर भाई? यह है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। इसके अलावा एक और कंटेनमेंट है, उसे कहते हैं आईमैक। आईमैक लिखे। अब आईमैक की पिक्चर भेज दें बेटा। आईमैक क्या है? बम्बई विल बी कनेक्टेड विद दुबई। लिख लें जल्दी से, कौन लिख रही है बेटा? माला, माला अली। दुबई विल बी कनेक्टेड विद दुबई जबले अली पोर्ट। उसे क्या कहते हैं? जबले अली पोर्ट। दुबई विल बी कनेक्टेड with Riyadh. Riyadh will be connected with Haifa, and Haifa will connected with Greek. Greek will be connected with UK. This is called IMEC. IMEC MEC. I लिख के IMEC. IMEC का मतलब है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो ये इंडिया से रेलवे लाइन, बुलेट, आप समझे, अंडर वाटर रेलवे लाइन डेवलप होगी जो बंबई से दुबई जाएगी, और इससे इंडो पैसिफिक 0.1 के ऊपर इंडियन मिलिट्रिलाइजेशन हो जाएगी। इंडो पैसिफिक 0.2 के ऊपर, मतलब स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और दुबई, अच्छा इसी के आई मैक का ही एक हिस्सा है, एक और लिखें, आई मैक का एक फर्दर हिस्सा, उसे कहते हैं इंडो इब्राहमन अकॉर्ड। लिखें इंडो इब्राहम अकॉर्ड। इंडो इब्राहम अकॉर्ड क्या है? कि इंडिया को इसराइल, ये क्या है? इंडिया को इसराइल और मिडिल ईस्ट अरब कंट्रीज के करीब लाना है। इसराइल, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन के करीब लाना है। सऊदी अरब, बहरीन, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई के, इसराइल और इंडिया को कनेक्ट करना है। इसे कहते हैं इंडो इब्राहम अकॉर्ड। फिर इन सब को यूरोप से कनेक्ट करना है, तो इसे कहते हैं आईमैक। जो आईमैक का पहला हिस्सा है उसे इंडो इब्राहम कहा जाता है, जिसमें इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट किया गया है। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री से कनेक्ट किया गया है? यूएई से, सऊदी अरब से इंडिया को कनेक्ट किया गया है, और उसके बाद इसराइल से कनेक्ट किया गया है हैफा में। तो इसे कहते हैं इंडो इब्राहम। फिर इन तमाम कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट किया गया है। ग्रीक से कनेक्ट किया गया है, और ग्रीक के बाद इनको डायरेक्टली यूके से कनेक्ट किया गया है, फ्रांस एंड यूके। तो ये है जी इंडो इब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, सो क्लियर? अब इससे क्या होगा कि ये एक अमेरिकन ब्लॉक, अमेरिकन ओरिएंटेड ब्लॉक डेवलप हो गया है। इंडिया, सऊदी अरब, यूएई, इसराइल, ग्रीक एंड फ्रांस एंड यूके। आप जरा गौर करें, आप जरा गौर करें कितना स्ट्रांग ब्लॉक है ये। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल, ग्रीक, फ्रांस एंड यूके, ये आई मैक है। अगर यूरोप को आप डिस्कनेक्ट कर दें, अब यूरोप को हटा दें, यूरोपियन कंट्रीज को, तो बाकी बन जाता है इंडो इब्राहम। जी जी, बहरीन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब सऊदी अरब और यूएई आ गए तो बहरीन उनके अलाय है ऑटोमेटिक। तो अब ये हो गया। अब एक और,
अब एक और, ये इंडियन की कारस्तानियां देखें जरा आगे। इंडिया ने एक और काम किया है, इस पे एक और चीज भी चल रही है, वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आप लिखें आई, जल्दी से टाइम कम है, मैं नेक्स्ट क्लास में जाना है। INT, इन आप लिखेंगे आई इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, INSTC, INSTC। अब इंडिया ये एक नया कॉरिडोर डेवलप किया गया है, प्रपोज हो चुका हुआ है, और वो क्या है जनाब? अक्सर इसकी तस्वीर भेज दो, मैं जो लफ्ज लिख रहा हूं आप लिखेंगे INSTC इमेज, तो वो फिर आप ग्रुप में भेज दें, मैं जब तक ये समझाता हूं। आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब इसमें क्या है, इंडिया ने पहुंच इंडिया ने कनेक्ट करना है अपने आप को बंदर अब्बास से, जिसे आप कहते हैं पोर्ट अब्बास इन ईरान। इंडिया कनेक्ट करेगा पोर्ट अब्बास इन ईरान, पोर्ट अब्बास टू तेहरान, तेहरान से अस्तारा खान, अजरबैजान, अजरबैजान का एक शहर है अस्तारा खान, अस्तारा खान से मॉस्को, रशिया। नहीं नहीं, खानसा INSTC है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ठीक है, ये एक नया प्रपोज्ड, जो रशिया ने प्रपोज, जो रशिया और इंडिया की कनेक्टिविटी को साबित करता है, रशिया और इंडिया की कनेक्टिविटी को साबित करता है, जिसमें रशिया, इंडिया और ईरान शामिल है। अक्सर इसका इमेज नहीं भेजा तुमने, इसका इमेज भेज दो, इसका इमेज नेट पे बहुत पड़े हुए हैं। तो ये है नॉर्थ, ठीक हो गया। इससे भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर और अरेबियन सी के अंदर। आस्त्रा खान जो है वो अजरबैजान का शहर है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखें, अगली अगली आखिरी, जो जिस बात पे आखिरी बात मैं आपको लाना चाहता हूं, मॉस्को हैज इनवाइटेड टू कम इनटू INSTC, मॉस्को हैज इनवाइटेड पाकिस्तान टू बी द पार्ट ऑफ INSTC। पाकिस्तान को कनेक्ट किया जाएगा बंदर अब्बास से, पोर्ट अब्बास से। पाकिस्तान को कनेक्ट किया जाएगा पोर्ट अब्बास से, ठीक है। तो गवादर को कनेक्ट किया जाएगा पोर्ट अब्बास से, ये लिख लें। सो पाकिस्तान भी इस IN, जिस पर इंडिया खुश नहीं है, जिस पर इंडिया खुश नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडिया अफगानिस्तान को कनेक्ट किया जाए, पाकिस्तान को कनेक्ट ना किया जाए। जबकि रशिया ने इनवाइट किया है पाकिस्तान को टू कम इन दिस। रशिया और अजरबैजान पाकिस्तान की फेवर में है, ईरान भी पाकिस्तान की फेवर में है, और इंडिया अपने आप को यहाँ इररेलेवेंट समझ रहा है आजकल, वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है रशिया के रोल को। फांसा ने भेज दिया तस्वीर, लेकिन ये तस्वीर मुंबई से, आप, हाँ जी, मुंबई से बंदर अब्बास है, और वहां से तेहरान है, तेहरान से आस्त्रा खान है ना, आस्त्रा खान, अस्तरा, इस्तारा खान आप कह लें इसको याद, और आस्त्रा खान से मॉस्को, ठीक है। मॉस्को से यूरोप जाएंगे बेटा, मॉस्को से यूरोप। तो डन हो गया, क्लियर।
जी 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 जी, नैयर बुखार, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ आखिर में जो नैयर ने क्वेश्चन किया, मैं इसी पे बात करूंगा, कि बल्कि आखिर अगली क्लास में बात करेंगे। इंडिया की जो फिलॉसफी है ना, वो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया जो चाह रहा है वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है, और वो कभी स्विच कर जाता है अमेरिका के ब्लॉक से, कभी स्विच कर जाता है मॉस्को के ब्लॉक से। बट मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊंगा कि ये असल में है क्या। ये रीजनलाइजेशन, यूनिपोलैरिटी, रीजनलाइजेशन एंड मल्टीपोलैरिटी, ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे बहुत सारी। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बताया मैंने। सो कैसा रहा लेक्चर बेटा? वॉज इट न्यू थिंग्स गुड फॉर यू टू मेक योर सेंस व्हाट इज गोइंग ऑन इन द रीजन एंड ग्रेट पावर कंपटीशन? ये सारा अरेबियन सी से कनेक्टेड है। सो ग्रेट पावर कंपटीशन इन अरेबियन सी।